over and above this point. यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई थी हम लोगों को ना, कोई इशू नहीं था ना? I hope there is none. These are some of the reactions which are based on that same principle which we have discussed earlier. ठीक है? So अगर मैं इसको ऐसे छुपा दूं तो can we predict the product on the right hand side what is going to happen? हेलो? हाँ सर। बाकी लोगों का क्या पोजीशन है? कैन दे प्रिडिक्ट? हेलो? हाँ जी, आप लोगों से हो पाएगा? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ अटैक? बेसिकली ये कंपाउंड दिखता कैसा है? इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. एन के पास लोन पेयर है. व्हाट कैन हैपन? It can come and join us, due to which Cl will get replaced. That is how the bonding is going to take place. The reaction is going to take place. ठीक है? समझ में आ रहा है हम लोगों को क्या? ओके, कोई नहीं, हम लोग reactions नोट कर लेते हैं. Amine is, this is 2 degree amine. It is reacting with 2 degree amine. Reacting with sulfonyl chloride. यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है? Again, ammonia is reacting with anhydride. And anhydride के साथ react करके क्या बना रहा है? It is creating an amide system, right? This thing is this is amide system with toluene substituted at second carbon of the toluene benzene ring, right? Am I making sense? Next reaction is this is again an amide, substituted amide. In fact, it is benzamide, benzene amide. Amide is substituted with one phenyl and one methyl. So di substituted benzamide. N phenyl, N methyl, benzamide. This is reacting with NaOH and slightest of heat to produce
benzoate ion and substituted aniline. ठीक है, benzoate ion and substituted aniline. 2-degree thing. This is basically getting hydrolyzed at this bond. H is coming over here. Therefore, it becomes 2-degree aniline. Next one is, again we have amide system, a substituted benzene ring or substituted benzene ring attached to nitrogen, and then we have amide at the other end. I mean, this is amide. ठीक है, एंड इस पर नाइट्रोजन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन है इस substituted benzene ring. They are reacting and they are reacting to produce hydrolysis हो रहा है. Hydrolysis में we are getting these two products. I mean, basic hydrolysis में we are getting aniline with OH. Actually aniline with OH नहीं रहेगा. Basic medium जब तक रहेगा ना, ये O माइनस रहेगा. ठीक है, अगर इसको हमको ये करना है तो फिर हमको स्लाइटली एसिडिक मीडियम फिर से डालना पड़ेगा. H plus H2O. This will bring the system into normal zone. NH2OH. एसिडिक मीडियम में ये आउटकम सही है. बेसिक मीडियम में Br जो है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय OH. ठीक है, और OH रिप्लेस होने के बाद एसिडिक होता है तो फिर ये डिप्रोटोनेट हो जा रहा है. यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा Br का. Br will not get substituted. Is it fine? The next one is a similar kind of reaction. यहाँ पर ROX है, 2-degree amine, and then this particular thing is getting created. The same thing which got reacted. I mean, not exactly the same thing, but kind of. अच्छा इधर ठीक. So these two are reacting to produce this particular thing. Now this is again over here. It is amide system, and these are two substituents. 1 and 2 substituent at nitrogens. Right? क्या नाम होगा इसका? IUPAC नेम हम लोग लिख पाएंगे क्या इसका? Can we write the IUPAC name of this compound? Hello? सबकी वॉइस कट हो रही है. मैंने बोला इसका एक सेकंड रुको. अभी कैसा है? अभी भी कट हो रहा है क्या? नहीं सर, अभी ठीक है. ओके, हाँ. सो आई एम आस्किंग, इसका अगर हमें IUPAC नेम लिखना हो तो व्हाट कैन वी राइट? दिस इज अगेन अमाइड. ठीक है, अल्काइल अमाइड, एंड इट इज N phenyl and N methyl substituted alkyl amide, right? Am I right? सर बाकी लोगों को कुछ याद है कि सब हम लोग भूल गए? What about others? हाँ सर.
ठीक है, तो हाँ याद है तो फिर बताना पड़ेगा आप लोगों को ना, तभी मुझे पता चलेगा ना कि याद है। चलेगा। Next is aromatic ring substitution. Third one is aromatic ring substitution, and that is going to happen in case of aniline. In aniline system. Now, see यहाँ पर क्या है? This is aniline, substituted aniline. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये रिंग जो होता है काफी एक्टिवेटेड होता है। ऐसे में अगर हम लोग सफिशिएंटली पोलर सिस्टम या पोलराइज्ड Br2 लाते हैं, ठीक है, सफिशिएंटली पोलराइज्ड Br2, तो तीनों पोजीशन पर लगभग साइमल्टेनियसली, तीनों पोजीशन पे लगभग साइमल्टेनियसली, या फिर हाँ लगभग साइमल्टेनियसली ही बोल सकते हैं, लगभग साइमल्टेनियसली इट अंडरगोज हैलोजिनेशन। ठीक है, अब लगभग साइमल्टेनियसली का मतलब ये नहीं है कि तीनों जगह पर एक ही बार, ऑल द रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन लाइक वेरी फास्ट, तीनों ही स्टेप्स बहुत ही फास्ट होंगे, and within fractions of second the compound will get converted into tribromo substituent। ठीक है, रीजन क्या होता है? Br2 का एक्टिवेशन, Br2H2O सिस्टम में Br2 को ब्रेक करने के लिए वी डू नॉट हैव टू प्रोवाइड a significant amount of activation energy from outside। ठीक है, पोलर सिस्टम में, पोलर प्रोटिक सिस्टम में Br को ब्रेक करने के लिए एज ए Br प्लस एंड Br माइनस वी नीड नॉट प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी हमको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है। and that makes the reaction faster, even faster or even multi-step। on contrary, अगर ये पोलर प्रोटिक मीडियम ना लेकर के kind of, I mean, very less polar, I mean, CCl4, which do not have any dipole moment, it has very slight polarity, bond polarity in each of the bonds, but at the net molecule is non-polar। ठीक है, at the net the molecule is non-polar, however each of its bonds are polar। तो वहां पर there is slightest amount of polarization which is provided to Br bonds, and this definitely requires a good amount of activation energy, good amount of activation energy। यहाँ पर एक्सटर्नली हमको देने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर एक्सटर्नली एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत है। यहाँ पर सॉल्वेशन के थ्रू हमको वो एनर्जी मिल जा रहा था, यहाँ पर सॉल्वेशन नहीं होगा। ठीक है, जस्ट स्लाइटेस्ट ऑफ पोलराइजेशन होगा, ब्रेकिंग के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी देनी होगी। देयरफॉर मल्टी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। Br2 in CCl3, CCl4 और CS2 और मे बी CHCl3 या क्लोरोफॉर्म, सॉरी क्लोरोमीथेन, इन सब में it cannot get this thing, it will not get multi substituted, or it will not be able to multi substitute the benzene ring of the aniline। ठीक है, ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आई एम जस्ट रिकैपिंग दीज रिएक्शंस अगेन। अमाइड के साथ में क्या होता है? अमाइड के साथ में द रिंग इज नॉट दैट ग्रेटली एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द क्रॉस कॉन्जुगेशन फ्रॉम C डबल बॉन्ड O, राइट। लोन पेयर एक तरफ रिंग के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कार्बोनिल ग्रुप या अमाइड ग्रुप के साथ, अमाइड ग्रुप के फॉर्म में वो रेजोनेट हो रहा है, सेम लोन पेयर।
Therefore, there is significant amount of cross conjugation. Now, if there is cross conjugation, the ring is not going to be that greatly activated, and in such scenario, even with a good polarizing solvent, Br2 is not going to get multi-substituted. It will get singly substituted only. ठीक है? So the reason for non-multi substitution is what? Cross conjugation. Cross conjugation, ठीक है, of 2 degree nitrogen, so lone pair of 2 degree nitrogen between ring and carbonyl. Am I making sense? Yes, sir. Very good. Next one is, we have again aniline. We are just taking examples. Aniline है Br2H2O और नहीं है Br2H2O, and it is going to be tri-substituted Br2 in CCl4 CH2 or CHCl3. It is going to be mono-substituted. एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे हम लोग, अमाइड बन जाएगा, एनहाइड्राइड के साथ अमाइड बन जाएगा, अमाइड के साथ FeBr2 अगर हमने किया तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. ठीक है, अमाइड के ऊपर FeBr की अटैच किया हमने, FeBr2, it's not FeBr2, Fe and Br2, it will form Br2 and FeBr3. So this is going to form ortho substituted bromine, ortho substituted orthobromination of the ring, orthobromination of the ring. Orthobromination of the ring. ठीक है, and then we can have its hydrolysis to get ortho substituted or yeah, orthobromo substituted aniline. अमाइड के साथ Br2 aqueous मीडियम में अगर डालते हैं पोलराइजेशन के बाद, दिस इज गोइंग टू सिंपली go at para position. Now why is this difference happening? एक जगह पे ऑर्थो, एक जगह पे पैरा. यहाँ पर भी पैरा पे आना चाहिए था. Any guesses? शुभम? So aqueous medium में इसलिए. नहीं 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 नहीं. ये aqueous medium में है इसलिए ये पैरा पे नहीं. एक्चुअली FeBr3 जो है ना, लेविस एसिड है, यानी Fe जो होगा लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर के इन्फ्लुएंस में it comes closer to them and then donate Br2 ortho position. ठीक है, कुछ और रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ा था इस टाइप का ना, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. रिमेंबर? हाँ सर. Same effect or influences taking place over here also. अदरवाइज इन जनरल अगर मान लो Br2 पोलराइज होकर के सिर्फ आकर के ऐड कर रहा होता है ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पर सिर्फ आता ही नहीं, हमेशा पैरा पे मैक्सिमम जाता. ठीक है, it is the Lewis acid which is coming in contact with these these electrons, lone pair of electrons, and then dragging Br minus to get Br in to get attached over this. Actually
FeBr2 is going to form Fe Br3, ठीक है, और FeBr3 फिर से Br2 के साथ इंट्रैक्शन करेगा और ये वाला लोन पेयर इधर, ये पॉजिटिव एंटिटी। अब ये पूरा सिस्टम जो है ना, इनके इन्फ्लुएंस में आता है, इन सेंटर्स के, इनकी तरफ माइग्रेट करता है, और ये जो है इनके साथ मूव होते होते ऑर्थो के पास आता है, और ऑर्थो पे ही प्रेफरेंशियली सब्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट हमको ऑर्थो पे मिलता है। अगर ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है इन आयन, सॉरी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आयरन के ऊपर, आयरन एटम के ऊपर, तो फिर इट वुड हैव डेफिनेटली गिवन पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी हैव गुड अमाउंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट। यहाँ पर हमारे पास वैसा कुछ नहीं है। Br plus and Br minus are getting actually separated और segregated, एंड इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जो कि माइग्रेट करेगा इनकी तरफ। तो ये आकर के ऑर्थो पोजीशन पर ये फिर रहता है, ऑर्थो पोजीशन पर बैठ जाता है। इज इट ओके? हाँ सर। फाइन, ये ध्यान में रखना। ओके, next is, again there are 2-3 small things which we need to keep in mind. presence of H plus और Lewis acids, ठीक है ना, during electrophilic aromatic substitution of aniline leads to formation of aluminium ion, aniline ion, ठीक है। ये एनिलीनियम आयन क्या होता है? दिस इज एनिलीनियम आयन, ठीक है। ये जो है दिस इज एनिलीनियम आयन 1, दिस इज एनिलीनियम आयन 2। ये प्रोटॉन से बना है और ये न्यूट्रॉन से बना है, नहीं, लेविस एसिड के अटैचमेंट से बना है, ठीक है। प्रोटोनेशन से बना है और लेविस एसिड के ज्वाइन होने की वजह से बना है, दो टाइप के एनिलीनियम आयन, ठीक है। अभी क्या है? लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एलिनियम आयन, aniline ion which is not fit for electrophilic aromatic substitution at O position as this deactivates via minus I, ठीक है। रेजोनेंस इसमें नहीं रहता है, it only deactivates via plus I और minus I। तो इसका ऑर्थो पोजीशन पर इफेक्ट ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मेटा और पैरा पर रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। सबसे कम पैरा पर, मेटा पर उससे कम, बट जनरली ऑर्थो पे ही सबसे ज्यादा होता है। इट्स एक्चुअली सेकेंड कार्बन एंड देन थर्ड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ पे तो नील हो जाता है, थर्ड कार्बन पर भी सिग्निफिकेंटली कम ही रहता है, सेकेंड कार्बन पर बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आउटकम क्या होता है? द आउटकम इज समथिंग लाइक दिस। अगर एनिलीन के ऊपर नाइट्रेशन हम कर रहे हैं तो वी गेट दिस प्रोडक्ट। वी हैव डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, फिर से सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 51, 47, 2 डिग्री 2%। अगर हमको पी नाइट्रो एनिलीन प्रीडोमिनेंटली बनाना है, पी नाइट्रो एनिलीन प्रीडोमिनेंटली बनाना है, what we can do, we can simply treat aniline with anhydride to form amide। अमाइड को फिर, अमाइड का फिर नाइट्रेशन कर देते हैं।
HNO3 H2SO4 15 degrees Celsius. This creates p nitro benzyl, sorry, N substituted p nitro benzyl and ethanamide, right? और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट नाइट्रो एनिलीन. ठीक है, p नाइट्रो एनिलीन. इज इट ओके? यहाँ पर हमें एक्चुअली मिक्सचर ही हमेशा मिलेगा ना. वी आर नॉट गोइंग टू गेट द प्योर p. इफ वी वांट प्योर p और इफ वी वांट प्योर प्योर m बनाना तो थोड़ा मुश्किल काम रहेगा हम लोगों के लिए. इट इज रियली गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क. नाइट्रेशन, डाई नाइट्रेशन करके एक को NH2 में कन्वर्ट करना होगा. द मेथड विच वी हैड डिस्कस्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन. ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पर डाई नाइट्रेशन करना एंड देन NH4S, NH4 नहीं, NH4HS, इसके साथ इसका रिएक्शन कराना. दिस विल that will actually reduce one of the NO2 to NH2. Right now? Hello. हाँ सर. ठीक है. These are two more method. I mean, these are not two more method. These are two reactions. यहाँ पर ये हमारा डाइजोनियम आयन है एंड ये एनिलीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन. 3 डिग्री एनिलीन. और ये एसिडिक मीडियम में दे आर रिएक्टिंग एक्चुअली. एंड रिएक्शन पे क्या हो रहा है, NO2 N2 प्लस जो है, N2 प्लस इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल and it is attacking the para position of the benzene ring. ठीक है, to form this sort of compound. हम्म. ये एक और साइड रिएक्शन है, इसमें नाइट्रोसेशन कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसेशन रिएक्शन. नाइट्रोसेशन reaction, nitrosation reaction, and it takes place on activated rings. Okay, we never get meta substituted aniline, so we first prepare meta substituted nitro compounds and then reduce NO2 to NH2 to get meta substituted aniline. ठीक है, are we getting this point? Aniline का meta substitution नहीं कर सकते हैं, so what we do, we prepare nitro compound, do meta substitution and then nitro को aniline में convert कर देते हैं, NO2 को NH2 में convert कर देते हैं. What is the suitable reagent to do this? NO2 को
NH2 में कौन कौन से ग्रुप कन्वर्ट करते हैं या कौन कौन से रिएक्टेंट सॉरी रिएजेंट्स कन्वर्ट करते हैं? FeHCl, SnHCl, right? FeHCl, SnHCl, lithium aluminum hydride. These four are definitely going to work. So these three are definitely going to work. Am I right? Okay. Next one is sulfonation of aniline. सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन में एनिलीन के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला हमने, कुछ इस तरह का सिस्टम बनता है. दिस इज अगेन अनिलीनियम आयन. 180 टू 200 डिग्री 185 टू 200 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करते हैं हम, इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, सल्फा एनिलिक एसिड. सल्फा एनिलिक एसिड. ठीक है. HSO4 में से OH हट करके ये आकर के यहाँ पर ज्वाइन हो जाता है एस एंड से. एस डबल बॉन्ड OH O माइनस. सो ये वाली चीज उड़ जाती है और इस पॉइंट से ये आकर के अटैक करता है यहाँ पर. इज इट ओके? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. ओके. सल्फा एनिलिक एसिड एंड दिस सल्फा एनिलिक एसिड इज, एक एंड पे ये क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरे एंड पर क्या है, निगेटिव है. राइट. पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज. अब इसकी वजह से ये ज्वेटर आयन की तरह बिहेव करता है. ठीक है. इट इज ज्वेटर आयन एंड सारे के सारे ज्वेटर आयन क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं H2O में. लगभग सारे के सारे ज्वेटर आयंस जो हैं दे आर इनसॉल्युबल इन H2O. और इनसॉल्युबल किस पॉइंट पर रहेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे इनसॉल्युबल रहेंगे. ठीक है. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर स्पेशली इनसॉल्युबल रहेंगे. वैसे ज्वेटर आयंस जनरली भी इनसॉल्युबल ही रहेंगे. इनका डोमिनेंस हमेशा ज्यादा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर रहेगा, पीएच जब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रहेगा. ठीक है. इसको OH माइनस से अगर हम ट्रीट करते हैं, इट फॉर्म्स दिस थिंग. बेसिकली यहाँ से H प्लस लूज कर देता है एंड इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर. सल्फा एनिलिक एसिड में से को OH माइनस में ट्रीट किया, इट फॉर्म्स a compound which is soluble in water. ठीक है. This is Jeter ion. All the Jeter ions are insoluble in water. Jeter ions की प्रॉपर्टी क्या होती है, doesn't matter what potential difference you apply across its solution, it is not going to move. Why? So यहाँ पर दिया हुआ isoelectric point pH at which Jeter ions or diions does not move towards any electrode, that is no response to any potential gradient, and that pH is pKa1 plus pKa2 by 2. That is the pH or that is the isoelectric point. Right? और क्यों नहीं मूव करेगा वो, कोई भी ज्वेटर आयन क्यों नहीं मूव करता है, इट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस डायग्राम. पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये जहां पर मान लो यहाँ पर है, और पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस पर फोर्स अगर F यूनिट लग रहा है, तो निगेटिव प्लेट की तरफ भी फोर्स इस पे कितना लगेगा,
F यूनिट लगेगा, तो दोनों तरफ F यूनिट लगने से नेट मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स क्या लगेगा लड्डू? नोट कर लिया हम लोगों ने? हाँ सर। ओके। The category of compounds which are deuterions or behave as deuterions, all the amino acid and sulfur anilic acid, they behave as deuterions. Deuterions क्या होंगे? Insoluble in water होंगे। उनका कोई भी एक पार्ट को, यानी उनको या तो बेसिक मीडियम में डाल दीजिए या फिर और ज्यादा एसिडिफाई कर दीजिए। ठीक है, या तो हम इनको बेसिक मीडियम में डाल दें या फिर और ज्यादा एसिडिफाई कर दें सच दैट यहाँ पर भी H+ आ जाए, फिर ये क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। तो दोनों तरफ में से कहीं पर भी हम जाते हैं, OH- के साथ ट्रीट कर दें इसको या H+ के साथ ट्रीट कर दें, दे विल बिकम सॉल्युबल। लेकिन जब तक ज्वेटर आयनिक फॉर्म में है ये, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इनसॉल्युबल। मेकिंग सेंस? हेलो, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? बाकी लोगों को भी कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, गुड, फाइन। अब ये सल्फर ड्रग का रिएक्शंस ऑलरेडी अलग से हम लोग देख चुके हैं, मतलब पहले देख चुके हैं, अभी ही जस्ट पिछले पेज पर देखे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम्म, CH3CO होल ट्वाइस O, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अमाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल NH, डबल बॉन्ड OCH3। फर्दर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं ClSO3H। ठीक है, अब ये कंपाउंड एग्जैक्टली देखने में कैसा होता है, तो इट इज गोइंग टू बी SOOOOH और एक तरफ से Cl जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये है ClSO3H। क्या होगा नेक्स्ट चीज? इट इज गोइंग टू रिएक्ट विथ दिस, एक्चुअली OH के साथ रिएक्ट करता है, लोन पेयर S लेता है, OH हट जाता है और इधर से ये H हट जाता है, सो इट बिकम्स और फिर उसके बाद ये रिएक्शन होने के बाद फिर इसकी शिफ्टिंग होती है पैरा पोजीशन पर। सो सबसे एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होता है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड amide SO2 and Cl. Now this formation is known as सल्फर ड्रग। ठीक है, और बेस कंपाउंड ऑफ सल्फर ड्रग हम सल्फर
basis of sulfur drugs. Now, post this, it can be treated like this in two ways. We can treat it with some RH2, and this will develop NH3 double bond OCH3 SO2 NHR. This on treatment with H3O plus. HR, and this is named as substituted sulfanilamide. If we are going to just treat it with ammonia, it will form, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पर R के बदले एक H रह जाएगा, राइट? और फिर से इसकी हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे हम लोग तो we will get NH2 upon hydrolysis. चलिए हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल ही रहता है हमेशा. ये नोट कर लो, एक्चुअली इनकी खासियत सल्फर ड्रग्स की क्या होती है, दे आर ये दे हैव एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, दे आर बेसिकली टॉक्सिक टू बैक्टीरियाज. ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ को ये हैम्पर करता है या बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करता है. कंट्रोल क्या, चेक करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को चेक करता है. ठीक है, बेसिकली कहीं पर हमारा हाथ वाथ कुछ कटवट जाता है, कटफट जाता है, या एब्जॉर्ब वगैरह जो पाउडर होते हैं, या देर आर मेनी सच पाउडर्स जो कि चाहे हमको मिलते हैं नॉर्मली, जो डॉक्टर्स वगैरह देते हैं, या फिर आपको भी मेडिसिन शॉप पे मिल जाएंगे. दे ऑल हैव समहाउ दीज कंपाउंड्स इन देम. ठीक है, either directly or indirectly, these are the compounds which are there in that that powder. ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि there is something called p amino benzoic acid. ठीक है, there is something called as p amino benzoic acid. तो
पी एमिनो बेंजोइक एसिड कैसा होएगा देखने में? पी पर एमिनो and this is benzoic acid, right? कुछ ऐसा ही होगा। अब होता ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो कुछ चीजें होती हैं, बैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं, उनके लिए ये चीज जो होती है, दिस इज एसेंशियल। ठीक है, बैक्टीरियल एंजाइम्स require this metabolic reagent to activate these enzymes। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ तो होते हैं जो पी एमिनो बेंजोइक एसिड के प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं और वो काम करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ सर। आवाज आ रही है? ओके, हाँ। So what happens is bacterial enzymes require p-aminobenzoic acid as a reagent to activate them। p-aminobenzoic acid की तरह ही ये सब्सटेंस भी होते हैं। ठीक है, अब ये अगर जाता है तो बैक्टीरियल एंजाइम्स जो होते हैं दे गेट कंफ्यूज्ड एज इन उनको लगता है कि हमारे लिए जो एक्टिवेट करने का मेटाबॉलिक रिएजेंट है दैट इज पी एमिनो बेंजोइक एसिड आया हुआ है, and they absorb this। on contrary होता क्या है कि this has killing effect, this actually dehydrates those enzymes। ठीक है, and it या फिर ऐसे बोले कि डिहाइड्रेट तो करता है, या फिर एटलीस्ट ये एसेंशियल मेटाबॉलिक रिएजेंट जो है उसका वो नहीं मिला, तो एंजाइम्स को जो काम करना था दैट वर्क दे विल नॉट डू, and as they will not do those work, और एसेंशियली होगा ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि बैक्टीरिया की कुछ एक्टिविटीज कंप्लीटली बंद हो जाएंगी एंड दैट लीड्स टू इट्स डिस्ट्रक्शन। ठीक है, दैट इज हाउ these drugs actually work। और we can note just one more point regarding this, ऐसी साइड में ही। the efficiency and efficiency and ability of sulfonamide depends on nature of group R, nature of group R। Effectivity of drug increases
is a heterocyclic ring. ठीक है. If R is a heterocyclic ring, the effectivity of the drug is at the best. ओके, नोट कर लिया हम लोगों ने. The next one is treatment with nitrous acid, diazonium salt formation. Diazonium salt formation. 1 degree alkyl amine can be treated with HNO2. This is HNO2. Yes. In presence of HX to form this diazonium ion. Or diazonium salt. However, these alkyl diazonium salts are highly unstable. Alkyl diazonium salts are highly unstable. ठीक है? And they, as soon as they are formed, they do not in fact require anything to actually decompose into R plus X minus and separate out the N2. ठीक है, N2 निकल जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव दे कंबाइन टू फॉर्म RX. फाइन. अब इसके बाद यहाँ पर जो भी रिएजेंट हम डालेंगे, we can do elimination, we can do substitution, whatever way we want to use it, we can use it. 1 degree alkyl amine, nitrous acid, treated with nitrous acid in presence of HX, it forms RX. ठीक है, alkyl halide. अराइल अमाइन अगर हमने लिया है 1 degree aryl amine, this is also going to form diazonium salt, but this one is relatively stable. This one is relatively stable. Aromatic diazonium salt is relatively stable. Stable क्यों होता है? अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं दोनों की, जैसे इसकी सिर्फ देखते हैं, तो यहाँ पर R है, यहाँ पर जो कार्बन होगा that might or might not be capable of doing conjugation. ठीक है, यहाँ पर अगर ये कॉन्जुगेटिव रहता है सिस्टम, इसमें भी कॉन्जुगेटिव सिस्टम डालेंगे हम, तो द स्टेबिलिटी विल बी स्लाइटली बेटर, बट स्टिल, यानी अलाइलिक सिस्टम इसके बाजू में मान लो हम डाल देते हैं, तो स्टेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज करती है, बट इट डज नॉट इंक्रीजेस टू एक्सटेंट दैट इट बिकम्स एज स्टेबल एज दीज अराइल डायजोनियम सॉल्ट्स. ठीक है, ये फिर भी खुद से लगभग डिकम्पोज कर जाएगा. और नॉर्मल अल्काइल रहा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर जाएगा. ठीक है, यहां पर ये रिलेटिवली स्टेबल होता है. रिलेटिवली स्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत स्टेबल हो जाता है, ये इतना स्टेबल रहता है कि सेल्फ डिकम्पोजिशन नहीं करेगा. ठीक है, इसको डिकम्पोज कराने के लिए वी विल रिक्वायर और वी विल हैव टू डू सम एक्स्ट्रा एक्टिविटी. इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज देयर विथ इट. नो सेल्फ डिकम्पोजिशन. उसमें क्या था? डिकम्पोजिशन. वहां पर क्या था? वहां पर इट वाज डूइंग सेल्फ डिकम्पोजिशन, राइट? Am I making sense? This is something, I mean, you don't need to note it down. I think ये मैंने कभी तो बताया है.
डाइजोनियम का फॉर्मेशन बताया है ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर नोट करने की इस चीज को जरूरत नहीं है, ठीक है, यू कैन जस्ट लीव इट। वी जस्ट नीड टू नो दैट डायजोनियम फॉर्म होता है, और डायजोनियम के लिए रिएजेंट क्या है वो हमको ध्यान में रखना होता है। इट इज आइदर HNO2 प्लस HX, या फिर नाइट्रस सॉल्ट कोई भी ले लेते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट, इनमें से कोई भी एक ले लिया एंड HX ले लिया हमने, दैट इज गोइंग टू लीड टू फॉर्म द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, डाइजोनियम। सो HNO2 या फिर NaNO2 या फिर KNO2, यही प्राइमरली रहते हैं, इनमें से कोई भी रहेगा। बेसिकली NO2 माइनस आयन रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। सब कुछ मिला जुला करके आखिरी में ये आता है कि NO2 माइनस आयन रहना चाहिए, ये रहेगा तो डायजोनियम फॉर्म हो जाएगा, अगर मेरे पास अमाइन ग्रुप कहीं भी है तो, ठीक है ना। अब ये एक बार हमारे पास आ गया, और ये ओके, let's get over here. Two degree alkyl amine per, if you are going to do the same activity, they are going to produce N-nitroso N-dialkyl amine. N-nitroso N-dialkyl amine. This is yellow color and soluble. This is yellow in color and it is soluble. ठीक है। Alkyl amine. 2 degree aryl amine, if I'm going to react this with this, it is again going to form N-nitroso N-alkyl amine. N पर alkyl, alkyl amine नहीं रहेगा, N पर alkyl aniline रहेगा, ये नाम थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। This is N पर nitroso, N पर alkyl and aniline, ठीक है। Is it okay? पिछले वाले पेज पर क्या मिला था हमको? These were soluble, these are soluble, इनकी solubility का कुछ बात ही नहीं रहता है, they are highly unstable, N2 गैस इवॉल्व करेंगे। 1 degree alkyl amine, 1 degree allyl amine, 2 degree aryl alkyl amine, they are going to form yellow color soluble, ये येलो कलर्ड, मतलब ये लिक्विड रिएक्शन हो रहा होगा, लिक्विड ही रहेगा, येलो कलर्ड कलर हो जाएगा हमारे सिस्टम का। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी येलो कलर एंड soluble। 3 degree alkyl amine पे there is not going to be any visible reaction. Similarly, aryl amine पे भी no visible reaction under normal conditions. However, under severe condition, 3 degree alkyl and 3 degree aryl amine reacts with HNO2 to form alkyl amine forms anilinium, no, not anilinium, aminium ion, ठीक है। This can be heated, or severe condition it is going to break into alcohol and N-nitroso alkyl amine.
The second one is if we are going to have 3-degree aryl amine, HNO2, HNO2, HNO2 के presence में it is going to form this sort of system similar to this, and upon hitting it is going to form ROH and N-nitroso N-alkyl aniline. ठीक है, N-nitroso N-alkyl aniline. अब इनमें से कौन सा बाहर निकलेगा, R प्लस किसका बनेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट इन दोनों में से या इन तीनों में से जिस पर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होएगा, जिस पर कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल होएगा, दैट इज द वन विच इज गोइंग टू कम आउट एंड फॉर्म द अल्कोहल. बाकी जो दो रहेंगे वो क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे, यहाँ पे ही रहेंगे वापस. यहाँ पर भी सेम फंडामेंटल होएगा, इन दोनों में से दोनों आर में से वो आर बाहर निकलेगा विच इज मोर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द कटायनिक चार्ज. ठीक है, कार्बोकटायन जिस पर ज्यादा स्टेबल रहेगा दैट इज गोइंग टू फॉर्म द अल्कोहल. इफ वी आर गोइंग टू डू इट, and this is actually at room temperature 0 to 10 degrees Celsius in presence of HCl, H2SO4 or NOCl, or there is going to be a p-nitroso N dialkyl aniline, that is nitrosation reaction हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, under these circumstances we are having nitrosation reaction. This is nitrosation reaction, addition of nitroso, addition of nitroso at para position on activated ring, on activated ring addition of nitroso. बट इनका प्रेजेंस ऑब्वियसली जरूरी होता है, ये प्रेजेंट होने चाहिए, ये प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर अस. एनीवे यहाँ पर भी उनका प्रेजेंस होना ही चाहिए. अगर मतलब यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन में हमको अलग से एसिड की जरूरत नहीं होती है, बाकी पिछले वाले स्टेप्स जो थे उनमें हमको अलग से एसिड की जरूरत पड़ती है. सिमिलरली यहाँ पर भी हमको अलग से किसी एसिड की जरूरत पड़ती है सच दैट ये NO प्लस जो है ना इसका फॉर्मेशन हो सके. अगर इसका फॉर्मेशन नहीं होता है तो फिर हमारा रिएक्शन नहीं हो पाएगा. आर वी गेटिंग दिस? ये बात समझ में आया? हाँ सर. ओके, अब यहाँ पर आखिरी में सारी चीजें क्लब करके 1 डिग्री अल्काइल और अराइल अमाइन HNO2 प्लस HCl या प्लस एसिड it is going to form diazonium which is a soluble product. 2 डिग्री रहेगा दोनों तो HNO2 येलो soluble product बनाएगा. 3 डिग्री रहेगा तो no reaction under normal test conditions. ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने करा हुआ है. नोट हो गया क्या, हम लोगों ने नोट किया इसको, इंफॉर्मेशंस को. तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, वी नीड 1 डिग्री या तो अल्काइल या फिर अल्काइल अमाइन या फिर अराइल अमाइन. ठीक है, 2 डिग्री वाले से क्या बनेगा, 2 डिग्री वाले से N नाइट्रोसो N अल्काइल अमाइन. ठीक है, या फिर N नाइट्रोसो N अल्काइल एनिलीन. एम आई राइट? इस तरह का नाइट्रोसो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बनता है which is yellow in color and soluble to
3 डिग्री वाला नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करता है। 3 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अल्काइल अमाइन या 3 डिग्री अराइल अमाइन, they do not react under normal conditions, right? Next one is reactions of diazonium salts. ठीक है, diazonium salt is going to do what set of reaction is what we need to know. और डायजोनियम सॉल्ट को अगर CuCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, इट फॉर्म्स ArCl, हलाइड बनाता है, अराइल हलाइड। Br के साथ ब्रोमाइड, Cn के साथ ArCN, जिस जगह पे डायजोनियम है उस जगह पर Cn आ जाता है। CuI से रिएक्ट करा है हमने, ArI बन जाएगा। These all reactions are known or characterized under सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसमें बाकी सारी कहानी जो पुरानी ये इधर की थी, दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ से बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव नोटेड इट डाउन, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दिस इंफॉर्मेशंस। यहाँ पर ये जो छोटी सी टेबल दी हुई है और साथ में ये एक चीज कि alkyl diazonium is self ये that is self-destroyed क्या वर्ड है, self decomposition, destroyed self decomposition, it undergoes self decomposition, हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन याद रहना चाहिए। और अराइल डायजोनियम क्या होगा, अराइल डायजोनियम this will not undergo self decomposition। ठीक है, decomposition due to conjugation, right? नेक्स्ट चीज क्या है, not undergo self decomposition, thus do not undergo self decomposition due to conjugation। between a ring and ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला जो सिस्टम रहता है इन दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन रहता है और उस कॉन्जुगेशन की वजह से दे डू नॉट सेल्फ डिकम्पोज। ठीक है, तो ये की इंफॉर्मेशन है जो हमको याद रहना चाहिए। और उसके बाद की जो चीज है वो ये है, हाँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये वाली चीज याद रहनी चाहिए हमको, HNO2 एंड एसिड चाहिए। अमाइन सिस्टम के ऊपर HNO2 प्लस एसिड के रिएक्शन से वी आर गोइंग टू गेट डायजोनियम। अब एक बार डायजोनियम बन गया, ठीक है ना, अल्काइल बना तब तो वो इमीडिएटली RX में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर अल्काइल नहीं बना, अराइल बना, तो अराइल के साथ इस तरह के जिस रिएजेंट के साथ हम उसको ट्रीट करेंगे उस तरह का वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है,
CuCl के साथ करेंगे तो ArCl बनेगा, CuBr के साथ करेंगे ArBr, CuCN के साथ ArCN, CuI के साथ ArI. These are known as Sandmeyer reaction. अगर सिंपली इसको हीट किया तो ArCl बनेगा, Ki या सोडियम आयोडाइड के साथ ArIN2 प्लस NaCl KCl ये भी बनता है. दिस इज नॉट सैंडमेयर. क्यों? क्योंकि Cu नहीं यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पर ये भी होता है कि ये कंपाउंड यूज करने के बजाय वी कैन ऑल्सो यूज Cu प्लस Cl2. ठीक है, या Cu प्लस Br2. इज इट ओके? यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन होता है. Cu प्लस Cl2 या Cu प्लस Br2 भी यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट सेम प्रोडक्ट. इज इट ओके? बात समझ में आ रही है हम लोगों को? हाँ सर। ठीक है. नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज फ्लोरिनेशन रिएक्शन, Simon's reaction. It is done by reacting HFBF3 that actually forms HBF4. तो HBF4 से हम फ्लोरिनेट करते हैं इसको, और फिर फ्लोरिनेट करते हैं मतलब हलाइड एक्सचेंज किया हमने, और फिर हीट किया तो इट फॉर्म्स फ्लोरिनेटेड बेंजीन रिंग. ठीक है. द another reaction is HPF6 और NH4PF6. ये दोनों ही रिएजेंट के थ्रू हमारा फ्लोरिनेशन पॉसिबल होता है. फ्लोरिनेशन ऑफ द रिंग इज पॉसिबल ओनली वाया दिस मेथड. ठीक है. फ्लोरिनेशन और किसी मेथड से हो नहीं सकता है. इट कैन टेक प्लेस ओनली वाया दीज टू मेथड्स. And not only this reaction, and it can take place only via diazonium formation. ठीक है. हलाइड्स का एक्सचेंज यहाँ पर, जैसे अगर मान लो क्लोराइड वगैरह जो था Cl वाला, वो सब तो हम बाकी रिएक्शंस वगैरह हैलोजिनेशन रिएक्शन जो देखा उसमें हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. बट ये Cl को हम डायरेक्टली F के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जैसा हम लोग अल्काइल वाले केस में किया करते थे. ठीक है. द ओनली वे टू, एंड फ्लोरिनेशन हम इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, रिंग का फ्लोरिनेशन भी डायरेक्टली नहीं हो सकता है. देयर इज प्रॉब्लम. F प्लस F माइनस में F कभी नहीं ब्रेक होएगा. ठीक है. अंडर नो सर्कमस्टांसेस F कैन ब्रेक इनटू F प्लस. एम आई मेकिंग सेंस? हेलो. हाँ सर। तो F प्लस अगर कभी नहीं बन सकता है तो हमको Ar को प्लस बनाना पड़ेगा, and that Ar plus can be generated only via diazonia. There is no other way out. So फ्लोरिनेशन हमारा यही दो रास्ते हैं. पहले डाइजोनियम बनाइए, फिर HBF4 या फिर HPF6 या अमोनियम हेक्सा फ्लोरोफॉस्फेन, इसके साथ आप रिएक्ट कराएं तो यू विल गेट फ्लोरिनेटेड बेंजीन रिंग. ठीक है. Then these are two more reaction, I mean same thing, slightly different way. Cu powder plus HCl or Cu powder plus HBr, they are again going to produce same product. It's going to be termed as Gutterman's reaction. ठीक है. Cu2O, this is going to produce phenol. H2O H plus, slightly acidic medium, this is again going to produce phenol. Either this or this is going to create phenol. ये actually ring यहाँ से छूट गया है. No funny business.
ये इसी रिएक्शन को जस्ट डिस्प्ले किया गया है। टोल्यून से टोल्यून सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पर रिएक्शंस एंड ये H3PO2 के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं दैट प्रोड्यूसेस बेंजीन। H3PO2 के साथ इट प्रोड्यूसेस बेंजीन। Diazonium with H3PO2 produces benzene. This is a important set of reaction. ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, जनरली पूछा जाता है। So we must be aware of it and we must know it. फिर से H3PO2 plus diazonium gives us benzene. It regenerates benzene. डायजोनियम को OH माइनस के साथ ट्रीट करेंगे, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फेनॉल। ज्यादा OH माइनस रहेगा, अगर हमारा कंसेंट्रेशन OH माइनस का ज्यादा है तो फेनॉल बनने के बाद ये फेनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और फेनॉक्साइड आयन से फिर फेनॉक्साइड आयन एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग रहेगा ये वाला, और ये इससे बेंजीन और जो हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस सिस्टम है ना, इसके साथ इंटरेक्ट करता है। ये ओपन हो जाएगा बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे एक्टिवेटेड रिंग के ऊपर एक्ट कर सकता है एंड इट इनफैक्ट एक्ट्स ओवर इट एंड फॉर्म्स दिस कंपाउंड। ठीक है, कपल्ड कंपाउंड। And this is going to be true not only for मतलब डायजोनियम को किसी भी ऐसे सब्स्टिट्यूटेड रिंग के साथ हम रिएक्ट कराते हैं जहां पर G इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG या ERG। ठीक है, डोनेटिंग रिलीजिंग ग्रुप है यानी एक्टिवेटेड रिंग है, वी आर गोइंग टू हैव दिस कपलिंग, डायजोनियम कपलिंग इसको बोलते हैं। This reaction is called diazonium coupling reaction. Very crucial reactions. ये सारे काफी क्रूशियल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर के सेट ये दो सेम है, यहाँ 3 जगह पे हमको फेनॉल बन के मिल रहा है, ये ध्यान में रहना चाहिए। बेसिक मीडियम में फेनॉल बनने के बाद देयर इज चांसेस ऑफ डायजोनियम कपलिंग। ठीक है, बेसिसिटी ज्यादा रहती है तो डेफिनेटली डायजोनियम कपलिंग हो जाएगी, बेसिसिटी बहुत कम रहेगी तो डायजोनियम कपलिंग कम होएगा। ठीक है, सो इट विल डिपेंड कि हाउ मच बेसिक माय सिस्टम इज। if my system is very basic, the diazonium coupling will be the major product. If it is very mildly basic, the phenol will be the final major product. यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन डाल रखा है मैंने, एग्जाम्पल रिएक्शन। वी हैव डाइक्लोरोएनिलीन ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोएनिलीन, NaNO2 के साथ रिएक्ट कराया हमने H2SO4 के प्रेजेंस में, डाइजोनियम बन गया। डाइजोनियम को H3PO2 के साथ रिएक्ट कराया, वी हैव डाइक्लोरोबेंजीन और सॉरी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ऐसे आप अगर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बनाने जाएंगे डाई सब्स्टिट्यूशन से तो इस जन्म में तो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, तो पहला क्लोरीनेशन हम लोग करेंगे, फिर दूसरा क्लोरीनेशन जब करने जाएंगे
तो इट विल डायरेक्ट आइदर टू द ऑर्थो पोजीशन और टू द पैरा पोजीशन। हम लोग क्या करते हैं, पहले एनिलीन बना लिया, एनिलीन को अब हम लोग क्लोरीनेट करना चालू करते हैं। तो पहले एक पैरा पर जाएगा, पैरा पर जाने के बाद कोई और ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू गो ऑन ऑर्थो। चला गया क्लोरो और ऑर्थो, सॉरी पैरा और ऑर्थो पे चला गया। अब उसके बाद एनिलीन को ही हमने उड़ा दिया, NH2 ग्रुप को डायजोनियम बना के उड़ा दिया। तो हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन मिल गया, डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा सब्स्टिट्यूटेड डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब काफी मुद्दे की बात है, इस तरह के काफी सारे रिएक्शंस पॉसिबल हो पाते हैं इस क्रूशियल रिएक्शन की वजह से। ओके, let us move on to the next reaction, post diazonium। ओके, सीयू पाउडर डायजोनियम के को सिर्फ सीयू पाउडर के साथ एक्चुअली यहाँ पे हीट करना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, इसको सिर्फ सीयू पाउडर के साथ हीट करते हैं तो इट फॉर्म्स डाइफेनाइल एंड डायजोनियम विद डाइमिथाइल एंड सॉरी या एन डाइमिथाइल aniline, इसके साथ there is diazo coupling and this is a donating group, G is a donating group। कोई भी donating group के साथ हम react करेंगे it is going to do diazo coupling। ठीक है, next important information, this is an important information, all of them are going to exhibit color। और color exhibition के पीछे reason क्या होता है, the whole structure is the whole structure and we are talking about this kind of structure diazo। ठीक है, the whole structure is in conjugation। ठीक है, this extensive conjugation is primarily responsible for color over here। और ये जो होते हैं compounds, they are form of or they are actually dyes, colorful dyes जो हमारे होते हैं different, they are some or the other products of this only। ये बेस कंपाउंड होता है, इसके अंदर डिफरेंट चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। ठीक है, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? एंड देन they exist in एंटी फॉर्म, एंटी मतलब ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डाइएजो कपल्ड कंपाउंड जो होते हैं they are going to exist in ट्रांसफॉर्म थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के लिए। they are also used as indicators। ठीक है, एक इंडिकेटर एक्चुअली हमने यहाँ पर दे रखा है, मिथाइल रेड लुक समथिंग लाइक दिस, COOH रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी मिथाइल रेड। ठीक है, और इस पोजीशन से मेटा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड सल्फोनेट रहा तो इट इज मिथाइल ऑरेंज। ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो मिथाइल रेड, पैरा पे सल्फोनेट रहा तो मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, तो हमारे इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर नथिंग बट डाइएजो कपल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉरी एसिड्स और सॉल्ट्स। ठीक है, ये भी सॉल्ट एसिड इन दोनों में माइग्रेट करते रहता है, तभी उनका कलर चेंज होता है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। Indicators are nothing but they are diazo coupled compounds, diazo coupled compounds।
Dyes are also diazo coupled compounds. Okay. Noted this information. हाँ सर। Okay. ये बेसिकली नोट करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, आप लोगों ने ऑलरेडी इसको मतलब वो मैंने पहले कराया हुआ है, सो नोटिंग डाउन इज नॉट रिक्वायर्ड. एसिडिक मीडियम में इट फॉर्म्स फिनॉल, ओनली फिनॉल. स्लाइटली अल्कलाइन में इट फॉर्म्स फिनॉल, फेनॉक्साइड पे आके रह जाता है. Slightly alkaline में it forms diazo coupling also. And आले फोन देना. Okay. And आई थिंक मैंने ये एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को शुरू में गलत बता दिया. ज्यादा बेसिक होने पर इट इज गोइंग टू डू डायजो कपलिंग. स्लाइटली अल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक पर ही डायजो कपलिंग होएगा. मोर बेसिक होने पर इट इज गोइंग टू फॉर्म डायजो हाइड्रोक्साइड. सो काइंडली मेक दैट करेक्शन. यहाँ पर अगर नोट किया है हम लोगों ने तो प्लीज मेक दैट करेक्शन. यस, दिस वन स्लाइटली एसिडिक पर ही ये फॉर्म करता है. हाईली एसिडिक में इट फॉर्म्स समथिंग एल्स which is given over here. I need to make this change. Hmm. Okay. Hmm. Diazotate ion. It forms diazotate ion in strongly basic medium. Okay. Now there is this pH range in which the coupling of aniline can take place. ठीक है. कपलिंग ऑफ एनिलीन कैन टेक प्लेस इन बिटवीन 5 to 7, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट हमारा डोमिनेंट रहता है. pH लेस देन 5 पे, दैट इज मोर एसिडिक कंडीशंस पे, दिस फॉर्मेट इज डोमिनेंट एंड नो कपलिंग टेक्स प्लेस.
So this is going to couple in between 5 to 7. बेसिक मीडियम में कपलिंग नहीं होएगा, इट विल स्टार्ट गेटिंग वो अल्कोहल का फॉर्मेशन, फेनॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। 7 से ज्यादा हुआ हमारा पीएच तो फेनॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। बिटवीन 5 and 7 कपलिंग कैन टेक प्लेस। बिलो 5 नो कपलिंग। Below 5 no coupling. Next is Heisenberg test. इसमें बेसिकली सल्फोनिल क्लोराइड हम लेके रखते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड रखते हैं। सल्फोनिल क्लोराइड को 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या फिर अराइल अमाइन दैट इज एनिलीन, इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन which is actually precipitate. ठीक है, they forms when this is reacted with sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride. This is benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride. If these two are reacted, it is going to form a precipitate. This precipitate is formed. This precipitate is soluble in KOH. ठीक है, and it then forms a clear solution which can then again be reacted with some acid to generate something like this which was initially there, and this is again going to become insoluble. So base में डालेंगे it will become soluble, एसिड में फिर से एसिडिफाइड कर देंगे सॉल्यूशन को, इट विल बिकम इनसॉल्युबल और प्रेसिपिटेट आउट, जो प्रोडक्ट बनेगा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगर 2 डिग्री के साथ सेम तरह से हम रिएक्शन कराते हैं तो 2 डिग्री इज गोइंग टू फॉर्म अगेन फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री दोनों इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। KOH या H plus में these precipitates will remain, they are not going to go off, soluble नहीं होते हैं। 2 डिग्री के 2 डिग्री अमाइन अल्काइल अमाइन या 2 डिग्री अराइल अमाइन, they are going to form precipitate with benzyl sulfonyl chloride, but that precipitate is not going to be soluble either in acidic or in basic medium. Benzene sulfonyl chloride 2 डिग्री अल्काइल अमाइन या फिर 2 डिग्री अराइल अमाइन, they are going to form a insoluble precipitate which is not dissolved in acid or basic solution, acidic or basic solution. 1 डिग्री वाले से क्या होता है, they form something which is precipitate or insoluble which readily dissolves into alkaline solution and again forms precipitate in acidic medium. यहाँ पर the precipitate which is formed will not get dissolved either in acidic or in basic medium. 3 डिग्री के साथ रिएक्ट कराएंगे, they are not going to form any product, that is they are going to remain as they are, this form will remain, and further अगर हम एसिड डालेंगे तो एसिड के साथ ये एक क्लियर सॉल्यूशन देता है एमीनियम सॉल्ट का, ठीक है, या एनिलीनियम सॉल्ट का, एमीनियम या एनिलीनियम सॉल्ट का एक क्लियर सॉल्यूशन देगा। ठीक है,
दैट इज हाइजेनबर्ग टेस्ट। हाइजेनबर्ग टेस्ट में 1 डिग्री अल्काइल अमाइन या 1 डिग्री अलाइल अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करता है। दोज प्रेसिपिटेट्स आर सॉल्युबल इन KOH 1 डिग्री वाले, एंड वो प्रेसिपिटेट KOH में सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन को फिर से एसिडिक बनाएंगे अगर हम, तो इट विल अगेन रीजनरेट प्रेसिपिटेट्स। 2 डिग्री अल्काइल या अराइल अमाइन को इफ आई एम गोइंग टू ट्रीट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, that is going to form a precipitate again, but this time the precipitate is not soluble in acidic or basic solution or medium. ठीक है। 3 डिग्री वाला, there is not going to be any reaction till the time, I mean, if we are going to react benzene sulfonyl chloride with 3 degree alkyl amine or aryl amine, they are not going to react. That means 3 degree alkyl amine or 3 degree aryl amine will remain as they were. ठीक है। Now, if I acidified this solution, it is going to form a aminium or anilinium salt, अमीनियम और एनिलीनियम सॉल्ट। ठीक है। और ये जो सॉल्ट होएगा ये सॉल्युबल होता है, इसलिए सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होएगा। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शंस, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में we have CHCl3 being treated with KOH or any strong base, and obviously थोड़ा सा यहाँ पर डेल्टा हमको देना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये H जो होता है ये बाहर निकल जाता है एज अ H प्लस, इट रिमेन्स C माइनस। ये डेल्टा के प्रेजेंस में एक Cl माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। इट फॉर्म्स, क्या बनाया इसने, ये क्या है, कार्बीन। कौन सा कार्बीन है, सिंगलेट। सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन अमाइन के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह का सिस्टम बना रहा है। ये वाला निगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। वैकेंट ऑर्बिटल में इसका लोन पेयर, n का लोन पेयर लिया है इसने, इसकी वजह से ये Cl जो है बाहर निकल जाएगा। तो 2 बॉन्ड, एक लोन पेयर, Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकल जाएगा। Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के निकलेगा, तो अभी क्या है, एक दो हाँ, एक लोन पेयर रहेगा फिर से और एक वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा। लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, ये H निकलेगा, H प्लस फिर निकलेगा, और यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा वो बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। फिर से नेगेटिव जो रहेगा वो रह जाएगा। अभी डबल बॉन्ड बनने के बाद फिर Cl माइनस निकलेगा यहाँ से, और लोन पेयर फिर से रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तीसरा बॉन्ड जो है वो इससे बनता है, it finally forms cyanide. It finally forms cyanide, isocyanide, cyanide बोल रहा हूँ, isocyanide. No. 2H, 2 लोन पेयर, और ओके, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ये वाला भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ, और ये माइनस जो है ये ठीक है, ये रह ही जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रहता है लोन पेयर, सी पे के ऊपर लोन पेयर रहता है, वो ये वाला लोन पेयर रह जाएगा एज इट इज इंटैक्ट इन एन ऑर्बिटल। इसके प्रेजेंस में ये दोनों Cl एक एक करके निकल जाएंगे, and then bonds are going to get formed. So that is carbyl amine reaction. Carbyl amine reaction में the components are CHCl3 KOH, slightest of delta,
दिस मे नॉट बी गिवन, कोई इशू नहीं है, इसके बगैर भी हमारा रिएक्शन, अब एक्चुअली बगैर तो नहीं होता है, वेरी लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, 30-35 डिग्री कम से कम टेम्परेचर चाहिए होता है इसको होने के लिए। देन it forms isocyanide। ठीक है, reaction with sulfonyl chloride, reaction with sulfonyl chloride, this is going to create sulfur drugs। ठीक है, 1 डिग्री से भी 2 डिग्री से भी बनता है, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं होता है, so it does not form anything। 1 डिग्री and 2 डिग्री के साथ we have sulfur drugs, sulfur ये सल्फामाइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड N अल्काइल सल्फामाइड, N सब्स्टिट्यूटेड सल्फामाइड। ठीक है, और साथ में ये बेंजीन के ऊपर सल्फामाइड है, SO2N जो है वो बेंजीन के ऊपर है, तो वी कॉल से इट बेंजा सल्फामाइड। So these are set of sulfur drugs which we have discussed already। Isothiocyanate, so basically अमाइंस को अगर CH2 डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग लाइक दिस। Just see the set of reaction, there is a double bond, lone pair is going to carbon, one of the bonds is getting opened, फिर देयर इज यहाँ पर प्लस चार्ज जो डेवलप हुआ उसकी वजह से H निकल के इस S पे चला जाएगा, इट फॉर्म्स दिस थिंग। ठीक है, नॉट मच टू बी वरीड अबाउट इट, जस्ट एक रिएक्शन है, और CO2 के साथ भी सिमिलर टाइप के रिएक्शंस अमाइन दे सकता है, CO2 के साथ भी सिमिलर टाइप के रिएक्शंस दे सकता है, राइट। Are we getting this point or pattern of reaction? Yes, sir. Okay. Now this is well known to all of us। ठीक है, इसमें क्या होता है, I mean हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए यू हैव क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को हम लोग हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। Ag2O के साथ ट्रीट करते हैं या फिर AgOH के साथ। ठीक है, यहाँ पर AgO भी होता है तो वी जनरली मॉइस्चन इट, तो Ag2O के साथ ट्रीट करते हैं या AgOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्वाटनरी हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो वी जनरेट दिस अल्कीन। ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करके वी कैन जनरेट अल्कीन एंड दिस एलिमिनेशन इज हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, सो क्वाटनरी अमोनियम कैसे बन सकता है, RX को एक्सेस लेकर के अगर NH3 के साथ रिएक्ट कराया हमने, दिस इज इन एक्सेस, तो फिर हमारा क्या बनेगा, RN R R R एंड प्लस क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है,
इसको हमको Ag2O के साथ Ag2O के साथ ट्रीट करना होता है या फिर AgOH के साथ ट्रीट करना होता है. इट फॉर्म्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड देन उसको हम हीट करते हैं तो वी जनरेट अल्कीन एंड दिस अल्कीन इज हॉफमैन प्रोडक्ट. ओके, ये वाले रिएक्शन सबको पता रहने चाहिए, ये रिएजेंट सबको पता रहने चाहिए. आप लोग भूलना मत, कोई भी मत भूलना, कोई भी इसको इग्नोर मत करना. दिस इज अ एक्चुअली मैं मतलब बता अल्कीन के टाइम पर ही देता हूँ, बट दिस इज एक्चुअली अमाइन के का रिएक्शन, अ की रिएक्शन ऑफ अमाइन. ठीक है, हर बुक में ये एज अ की रिएक्शन ऑफ अमाइन दिया रहता है. इट इज जस्ट लाइक कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन के टाइम पर पढ़ाना होता है तो वी टीच इट ऑल्सो. इनमें से जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे ये एक इम्पोर्टेंट सारे लोगों के लिए नहीं है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हमको याद रखना होगा, बट ये पहले ही हम काफी बार कर चुके हैं. दिस इज अनदर नॉट सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर अदर्स. ये रिएक्शंस हम लोग को पता रखना है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. ठीक है, हाइजेनबर्ग टेस्ट हमको पता रहना चाहिए. हिंसबर्ग टेस्ट, हाइजेनबर्ग नहीं, हिंसबर्ग टेस्ट. फर्दर ये अमाइन कपलिंग, ये सारी चीजें हम लोग को पता रहनी चाहिए. डायजोनियम के सारे रिएक्शंस हम लोग को पता रहने चाहिए, अच्छे से पता रहना चाहिए. डायजोनियम के सारे रिएक्शंस हम लोग को पता रहना चाहिए. डायजोनियम फॉर्मिंग कंडीशंस हम लोग को पता रहने चाहिए, यानी ये सेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग को पता रहना चाहिए. सो दिस पेज इज क्वाइट क्रूशियल, वी हैव टू रिमेम्बर इट. सारे लोग ऑल ऑफ यू. ठीक है, फर्दर ये तो लगभग सेम चीज है, डायजोनियम वाली चीजें ही हैं. ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट. अच्छा, ये जैसे ठीक है, ये कुछ ज्यादा नहीं. जैसे शुभम, जैसे ये नाइट्रोजन वाले केस में होता है, वैसे सल्फर वाले केस में, सल्फोनियम सॉल्ट्स में भी होता है. तो दिस क्वाटरनरी अमोनियम हो या ट्राई सल्फाइल सल्फोनियम सॉल्ट्स हो, आयंस हो, they are also going to do the similar kind of elimination, Hoffman elimination. ठीक है, next and last two three reactions is oxidation of amines. Amines can be oxidized, but 1 degree amine, this is oxidized but gives different set of products, so no useful product is found. इवन 2 डिग्री के साथ हमको कुछ यूजफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता है. 3 डिग्री के साथ वी गेट अ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड. ठीक है, 3 डिग्री के साथ वी गेट अ टर्सरी अमाइन ऑक्साइड. फाइन. अब ये टर्सरी अमाइन ऑक्साइड जो होते हैं, टर्सरी अमाइन ऑक्साइड दैट हेल्प्स इन कोप एलिमिनेशन. तो या तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो हमको मिलता है अल्कीन हॉफमैन एलिमिनेशन से, या फिर कोप एलिमिनेशन में भी वी टेंड टू गेट ये क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हॉफमैन एलिमिनेशन. इज इट ओके? सो बेसिकली हम 3 डिग्री अमाइन को हीट मतलब H2O2 या
पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, इट फॉर्म्स टर्सरी अमाइन ऑक्साइड। टर्सरी अमाइन ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं, टर्सरी अमाइन ऑक्साइड को अगर हमने हीट किया तो इट विल फॉर्म methyl hydroxyl amine and an alkene. And this elimination, ये जो elimination होगा डेल्टा के साथ में, that is going to follow the Hoffman elimination rule. अगर यहाँ पर इथाइल पड़े हुए होते, ET रहता, तो एक्चुअली हमको यहाँ पर क्या मिलता, इथीन मिलता, rather than this R वाला thing. Is it okay? Hello. हाँ सर। Fine. It is a syn elimination and proceeds via cyclic transition. Okay, fine. That's all. यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है. Cope elimination is actually the last one. Cope elimination वगैरह भी बहुत मेजर सबके लिए नहीं है. It is something जिसको बाकी लोग ये कर सकते हैं. ये हॉफमैन वाला जो होता है सर, that is something जो सबको ध्यान में रखना होता है. हाइड्रोक्सिल अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसके हीटिंग से जो हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, that is something which you have to know, everyone has to know. Cope elimination, this can be like not mandatory for all of you to know. ठीक है, that is something from my end in this segment. अच्छा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर रहे हैं क्या? हेलो, हाँ सर। कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं? MS जॉन से। ओके, बाकी लोगों का क्या चल रहा है? तमन्ना, केविन, देवांग, हाँ सर। किस चीज से करती हो सॉल्व?